بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حکومت ایک جعلی الیکشن کے نتائج کی ایک جعلی حکومت ہے، اور سب نے بالاتفاق 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کیا ہے اور اثر نو نئے شفاف غیر جانبدارانہ پہ اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے ہیں، عوام میں ایک بیداری پیدا کی ہے، اور اس ناجائز حکومت کی نااہلیوں کے نتیجے میں ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کاروباری طبقے نے بھاری بھرکم ٹیکسز کے نتیجے میں اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ پاکستان کا کاروبار جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان عوام بری طرح کرب کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے آج مرکزی مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا، اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا۔ یہ آزادی مارچ ہوگا، پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے، اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے، اور انہوں نے کشمیر پر سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میں انشاءاللہ میں 1-2 دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس نے پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ملک اس وقت رسک پر ہے، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں، کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کچھ علماء کرام کا سہارا لے لیتا ہے۔ ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جب پریشر بڑھتا جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں چند دن کے بعد کسی دینی مدرسے میں آ کر درس و تدریس شروع نہ کر دے۔ یہ عین ممکن ہے، نہیں، یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہیں، میں ان الفاظ کو رد کرتا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے
पीपल्स पार्टी के और JOI का मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बराबर भुट्टो साहब भी आज आए हैं और बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की है। कल आपने मुस्लिम लीग नून के वफ़द को सुना, मुस्बत बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने आज पे छोड़ी हुई थी। वो चीज़ें आपके सामने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो आज तक का ऐलान रहा है वो धरने का रहा है, क्या वो 2 दिन के लिए आएगा उसको सपोर्ट करेंगे या धरने में भी आपके साथ? हज़रत पूरा मुल्क आ रहा है, उनके वर्कर्स आ रहे हैं, कारोबारी हल्का आ रहा है, छोटा दुकानदार आ रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एपका आ रहा है, वकला आ रहे हैं, पूरे मुल्क का हर शोबे ज़िंदगी हमारे बराह रास्त राब्ते हैं। बराह रास्त राब्तों में उन्होंने जिस तरीके से जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उसकी तर्जुमानी इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। जी इंशाअल्लाह अभी हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली गई कहीं पर, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमने हजरत पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए हुए। ये फरमाएं कि आज़ादी मार्च लेकर आएंगे, नून लीग ने कहा नवंबर तक ले जाएं, मार्जिन चाहिए सब अब फैसला हो गया ना। अब आप आज़ादी मार्च लेकर इधर बैठे रहेंगे या 1-2 दिन का धरना देके वापस चले जाएंगे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? नून किस तरह अमली या अलामती PP किस तरह शिरकत? बज़ाहिर तो ये सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हम जल्दी उठने की इरादे से नहीं आ रहे हैं। सर्दियाँ बढ़ जाएंगे। मौलाना साहब जज्बात की गर्मी रहेगी। ये आप डी चौक तक आएगी, कहाँ तक आएगी? इस्लामाबाद की जगह डी चौक तक आएगी। मौलाना साहब कौन सी ऐसी शर्त है जिस पे समझौता नहीं होगा? कौन सी ऐसी शर्त है जिस पे समझौता नहीं होगा? तब तक आप धरना खत्म नहीं करेंगे? हज़रत हमारा किसी भी मामले पर इनके साथ न मुफाहमत हो सकती है न, और इनका जाना जो है ये आखिरी बात। मौलाना साहब जब आप एहतजाजी कार्रवाई वहाँ से रवाना होंगे तो वो इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है असेंबली से, उधर से इस्तीफा आ जाओ, उधर से आप रवाना हो जाए? ये भी हम सब दोस्तों के साथ मशावरत के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पूरे अपोजिशन के मुश्तरक है, मकसद सबका मुश्तरक है, तो इस हवाले सब साथ साथ जा रहे हैं। छोटी छोटी, एक तो ये कि आपको बार बार शेख रशीद डेंगू से डरा रहे हैं कि इस्लामाबाद में डेंगू को फैला हुआ, तो वो डेंगू से उनकी मुराद क्या है? दूसरी बात ये बताएं कि क्या हमारा सरोकार डेंगू से नहीं है, हमारा सरोकार डिंगा से है। नहीं, प्रेशर के तहत वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। मुमकिन है दाढ़ी भी रख ले। कोई तब्दीली इसमें न कोई हमें कह रहा है तब्दीली के लिए, न हमारा इरादा है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लोग कितने होंगे मौलाना? में शमूलियती तकरीब में ये कहा है कि KPK से ना JUI का कोई कारकुन गुजर सकता और ना ही हम मौलाना फजल रहमान को गुजर। किसने कहा ये? महमूद खान वज़ीर आज़म। कोई छोड़ो यार, ये बात भी करने की वो कहा, अगर मैं कह दूं कि वो घर से भी नहीं निकल सकेगा फिर। आपने 27 को आपने ऐलान कर दिया, 27 से आप इज़हार जदीयती के साथ ही आप शुरू हो जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ आपका मार्च होगा। आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, आपका मार्च कामयाब हो जाता है, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है और नए इलेक्शन का जो मुतालबा कुछ देर पहले अकरम खान दुरानी ने भी बताया फरुद्दौला बाबर के साथ ये होता है, तो अगर इलेक्शन उसी पुराने निज़ाम के साथ होते हैं नहीं, हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, इंतखाबी इस्लाहात की बात शर्त है जी। 15 लाख बंदे लेके आपने गिनने हम इंशाल्लाह आप उस वक्त देखेंगे ना, आप देखेंगे कि 15 लाख से कम होंगे। साहब ये बताइए, इस दौरान अगर कोई सालसी का किरदार अदा करना चाहे, कोई कुव्वत है, तो आप कबूल करेंगे? इसी के साथ इसके साथ क्या हमारे उसूलों को अगर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसूली मुतालबे को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसकी तरफ आमादगी है कबूल करने की, तो आए कोई तजावीज़ लाए। क्या तजावीज़ लेते हैं? आर्मी इस वक्त कादिरों के साथ मुज़ाकरात में शुरू हो गई है कामयाब बनाने के लिए। दूसरा दीनी तबके में इमरान को सपोर्ट करना शुरू हो गया, देवबंद के नुमाया हुआ, इस पर आपका क्या तबसरा है? मेरे ख्याल में जी ये वो सारे काम हैं कि जो उनके नहीं हैं। हम तो एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम इदारों का एहतराम करते हैं।
हम फ़ौज का भी एहतराम करते हैं, हम जनरल्स का भी एहतराम करते हैं। ये हमारा इदारा है। आज ये लोग बैठे हैं, कल कोई और उनकी जगह लेंगे, तो इदारों से हम तसादुम की पॉलिसी नहीं इख्तियार करते और कहीं पर भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होने भी नहीं देंगे। हम 15 मिलियन मार्च पे हमने तजर्बा कर लिया और बता दिया दुनिया को कि हम कितने पुरअमन हैं। तो हमारा यहाँ इस्लामाबाद आना और यहाँ ठहरना ये भी बिल्कुल अमन के साथ होगा और किसी किस्म की तसादुम का हमारा कोई इरादा नहीं। मिशन के अलावा क्या किसी और तरफ से क्या बासर लोगों की जानिब से कहीं कोई राब्ता करने की कोशिश की गई है किस सतह पर? हजरत जब कोई ऐसा राब्ता होगा जो आपको बताने का होगा तो हम बताएंगे। आप अकेले डेट अनाउंस कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर, नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग के साथ तय हुआ करेंगे, ये समझा जाए कि वो नहीं है आपके साथ? मेरे ख्याल में ये बड़ा फुर्सुदा किस्म का सवाल है जो आप कर रहे हैं। मेरी गुजारिश नहीं जी, अभी आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने आपके सवाल को भी मैं समझ रहा हूँ, इसके सवाल को भी समझ रहा हूँ, फिर कहता हूँ वो हमारे साथ हो। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें पता है कि हमने कहाँ कहाँ रहकर और किस स्ट्रेटजी के साथ आना है, लेकिन सब होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, जो आपने डेट दी है इस्लामाबाद मार्च का, आपको कहीं नजरबंद या गिरफ्तार कर दिया जाता है तो आपकी पार्टी का तो इसकी भी स्ट्रेटजी हम बना चुके हैं, ये भी बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, जैसे आपका मौक़िफ़ है, तो ज़ाहिर है वो सौदा अकेले तो नहीं हुआ ना, क्योंकि दौरा अमेरिका में इकट्ठे थे। देखिए आप आगे न बढ़े ना, बात ये है कि आप सवाल कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि कमांड ऑफ यूनिटी किसके हाथ में है आईनी लिहाज से, लिहाजा जो कमांड ऑफ यूनिटी की अलामत है उसी को टारगेट होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।